हाय गाइस, वेलकम बैक टू रूट 99, आपका सबसे ट्रस्टेड कैट एज वेल एज ओमैट चैनल व्हेन इट कम्स टू एमबीए। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू चूज योर एमबीए स्पेशलाइजेशन। आज हम बात करेंगे कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए सही है, फिनांस में जाना चाहिए या मार्केटिंग, एचआर लेना है, एनालिटिक्स, एंड सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, देखा देखी में गलत डिसीजन मत लेना। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखो एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच स्पेशलाइजेशन यू आर गोइंग टू चूज इन एमबीए। लेट्स डिस्कस अबाउट द एमबीए रिग्रेट। दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। 67% ऑफ द एमबीए ग्रेजुएट्स यानी 7 आउट ऑफ 10 पीपल ये कहते हैं कि काश उन्होंने अलग स्पेशलाइजेशन चूज करी होती है। सो दे रिग्रेट अबाउट देयर ओन डिसीजन। सोचो गाइस, इतनी मेहनत कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग 25 लाख 2 years ऑफ योर प्रीशियस लाइफ एंड बाद में आप पछताओगे। ऐसा क्यों होता है? आई डिस्कस अबाउट इट। आई टेल अबाउट सम मिस्टेक्स दैट पीपल आर टेकिंग इट। फर्स्ट थिंग इज यू आर मेकिंग योर एमबीए स्पेशलाइज डिसीजन बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड। दोस्त ने जो लिया है वही आप चूज करते हो। Let's say आपके दोस्त ने finance लिया है, that's why you are choosing finance, and this is the biggest mistake that you are doing. Second गलती, hard mentality. Finance safe है, that's why you heard from someone itself, लेकिन you need to understand, is it safe or not? Do you like the numbers or not? Do you like analytics or not? According to that, you have to make a decision. Third thing is, the third mistake that students are doing is अपना background और अपनी skills ignore करके they are taking the decisions. Fourth mistake that they are doing is without researching about job roles, they are taking a shot on the guys. Last mistake that students are doing here itself is salary deadlines. They are not thinking about salary, right? So they are choosing the company as well as role because they are getting 40 lakh. So guys, I'm making this video to make you aware. If you are getting into MBA, you just understand the whole video and make your own decision. Don't make random decisions. Don't hear or learn from the people who have never been there and done that. So let's discuss about the specialization. Point number one, the first job that you are going to get. Recruiters specialization देख के shortlist करते हैं। फिनांस वाले लोग BFSI सेक्टर में जाते हैं, मार्केटिंग वाले लोग FMCG में, HR वाले कंसल्टिंग में, मेनली HR कंसल्टिंग। तो अगर आपका स्पेशलाइजेशन गलत हो गया, इंटरव्यू का दरवाजा बंद हो जाए। सेकेंड थिंग इज सैलरी मैटर्स अ लॉट। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो CTC बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन बाउंड होती है। फिनेंस एंड कंसल्टिंग की सैलरी आर वेरी हाई। HR में 30 to 40% ऑफ द पीपल आर गेटिंग इनटू मोस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस। सो यू नीड टू थिंक अबाउट। थर्ड थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द 5 year ट्रैजेक्टरी। सो MBA के बाद अगर आप वर्टिकल स्विच करना चाहते हैं, सालों की क्रेडिबिलिटी वेस्ट हो जाए। जो पहली बार अच्छे से पिक किया करता है, जैसे आई चोज सेमीकंडक्टर, आई इफ आई लर्न अबाउट सेमीकंडक्टर इट विल कंपाउंड मी। तो आपको वो कंपाउंडिंग करनी है, यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस स्पेशलाइजेशन। इसलिए डिसाइड करने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द 5 core MBA specializations that you need to think about. Finance, if you're good at numbers, if you're good at markets, if you have a better understanding about how to work with large amount of data, get into finance. Marketing, अगर आप कंज्यूमर साइकोलॉजी समझते हो, आप ब्रांड्स, whether you wanted to work with different brands and you understand about consumer behavior, then get into marketing. If you wanted to learn about people, culture, and I wanted to have a safe kind of job, then get into HR. Operations is for the core people who are from manufacturing, even the mechanical, computer science, electrical background can get into operations. It's just that you need to understand whether the past background matches with your future skill set because you're going to work in core supply chain and process optimization. Fifth one, which is very unique and very interesting, and that is booming a lot, business analytics. अगर आपका inclination data, strategy, analytics इनकी तरफ है, definitely take a shot on this. So we'll discuss about each and every specialization in brief. MBA and finance किसके लिए one of the best option है? जो analytical thinker है, जो नंबर से नहीं डरता है, पीपल हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग और कॉमर्स बैकग्राउंड, जो मार्केट, स्टॉक्स और फाइनेंशियल डेटा को एंजॉय करता है। एंड द टॉप रोल्स व्हिच आर ऑफर्ड हियर इज इन्वेस्टमेंट बैंकर, CFO, इक्विटी एनालिस्ट, क्रेडिट मैनेजर, फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर। And the top companies which are hiring in the industry are Goldman Sachs, JP Morgan, Kotak, SDFC, Deloitte, KPMG. Finance में if you look at
the top 20 schools of the country. Packages goes around 25 to 40 LPA. रेगुलर कॉलेजेस में 8 से 25 लाख तक पैकेज आते हैं. फ्यूचर स्कोप की बात करें, यू कैन गेट इनटू फिनटेक, वेल्थ मैनेजमेंट, ESG फिनांस. तो इंडिया में ये हाई ग्रोथ एरियाज है. यू कैन डेफिनेटली टेक अ शॉट ऑन दिस. लेट्स डिस्कस अबाउट AI बिकॉज एवरीवन टॉकिंग अबाउट AI. एआई का इम्पैक्ट थोड़ा मॉडरेट है. जूनियर एनालिस्ट जो है दे आर ऑन एट रिस्क स्टेज. लेकिन अगर आप CFA कर ले हो, along with that if you have complete your MBA, it will be one of the safest option that is available for you. आप कब ये फाइनेंस स्पेशलाइजेशन अवॉइड कर, अगर if you are fearing about or if you hate about the spreadsheets market or numerical stress, आपको नंबर पसंद नहीं है, then don't take a shot on finance. Finance बाहर से ग्लैमरस लगती है लेकिन रूट्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आप नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज मार्केट. लेट्स डिस्कस अबाउट किन लोगों के लिए मार्केटिंग वुड बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस. जो क्रिएटिव थिंक करे, जो कम्युनिकेट करना अच्छा जानता है, जो ब्रांड्स और कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है. The top roles which are offered in marketing are brand manager, product manager, digital head, category manager, CMO, and the top recruiters are HUL, P&G, Amazon, Flipkart, Nestle, ITC, Marico, Colgate. Starting salary would be 7 to 15 LPA. I'm talking about this salary in Tier 3 schools. In IIMs, starting salary goes around 20 to 30 LPA. अगर बात करें फ्यूचर स्कोप की, D2C ब्रांड्स में बूम कर रहा है मार्केटिंग. AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन भी अभी आ रहा है. डिजिटल मार्केटिंग में मार्केट in this kind of domain, the demand of a marketer is explosive. So let's discuss about AI से क्या impact हो रहा है. I feel in marketing domain AI का low to moderate impact है. Creativity, strategy, human led important है. Post that अगर tools की बात करें marketing में, आपको most importantly internal tools होती है जैसे iSense हो गया, Google Analytics. You should be aware of it. किन बच्चों के लिए मार्केटिंग अवॉइड करना चाहिए? जो एम्बिग्युइटी से डरते हैं, द पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू कंज्यूमर मार्केट रिसर्च, एंड पीपल हु डोंट नो हाउ टू हैंडल real world pressure, public pressure, I would say, then don't take a shot on market. Third one in the list is ambient human resources, for which people HR is one of the best options. जो genuinely people first लोग हैं, जो साइकोलॉजी या कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते, people who are interested in people management, stakeholder management, definitely take a shot on HR. Top roles are HR business partner, L&D head, talent acquisition, CHRO, OD specialized, CEOs hiring. टॉप कंपनी जो हायर करती है एचआर को आर Infosys, Wipro, TCS, Deloitte, then Michael Page. Then there are core HR companies such as Reliance, Aditya Birla, Tata Group. Tier 3 कॉलेज से HR में MBA कर रहे हो तो you'll get a package around 6 to 9 LPA, but IIMs में you'll get a package around 12 to 18 LPA. Future scope की बात करें, HR Tech, DES Strategy, People Analytics. These are fast growing companies in India and fast growing domains. अगर AI का impact की बात करें तो HR मेनली ट्रांजेक्शनल HR ऑटोमेट हो रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिक और कल्चरल रोल्स अभी भी से. इफ यू वांटेड टू गेट इनटू टेक्निकल रोल्स और नंबर्स रैंडम रोल्स और हाई CTC रोल्स, डोंट गेट इनटू इट बिकॉज people mainly think about CTC once they complete an MBA. Next one in the list is MBA in Operation and Supply Chain Management. के लिए बहुत अच्छा है. Let me tell you about it. People who are from engineering backgrounds, I think it is a natural fit for जो process oriented है और logistics में interest रख. You can definitely take a shot on this. Top roles which are offered in HR are supply chain manager, operation consultant, procurement head, plant head, logistic director. Recruiters की बात करें तो Amazon, Flipkart, Tata Motors, Mahindra, McKinsey, D-Mart, Unilever are hiring in masses. Starting salary की बात करें, टायर 3 स्कूल्स में 7 से 12 लाख का पैकेज लगेगा. IIMs में 15 से 25 लाख का पैकेज लगेगा. फ्यूचर स्कोप की बात करें, इंडिया का नंबर 1 गैप एरिया यही है. कोविड ने प्रूव कर दिया है कि सप्लाई चेन इज वेरी क्रिटिकल. टॉकिंग अबाउट AI impact, in my opinion the AI impact would be very low cause strategic operations अभी भी resilience रोल पे बूम करेंगे in the upcoming 5 to 10 years, and AI से there will be long term growth into this domain. If you don't wanted to get into client facing or creative role, if you don't wanted to learn about core supply chain operation, don't get into operation SCM domain. Now let's discuss about the booming domain which is MBA in business analytics. और मैं personally कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप data oriented background से तो 2025 से 2030 तक this is one of the most powerful specialized. If you are quant oriented engineering या tech background है, आप data से if you are ready to find out the patterns, if you are a problem solver, definitely take a shot on business analytics. टॉप रोल जो ऑफर किए जाते हैं, दे आर डेटा स्ट्रेटेजी मैनेजर,
एनालिटिक्स कंसल्टेंट, चीफ एनालिटिक्स ऑफिसर, प्रोडक्ट एनालिस्ट। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, मैकिंजी, बीसीजी, डेलॉयट, जेडएस, ईवा, अमेजॉन, केपीएमजी आर हायरिंग मासेस। स्टार्टिंग सैलरीज 10 to 14 लाख रुपीज फ्रॉम टायर टू बी स्कूल्स। आईआईएम्स में 20 से 35 लाख तक जॉब लगेगी। फ्यूचर स्कोप की बात करें तो गार्टनर का कहना है कि 80% ऑफ enterprise decisions are going to be a data driven decisions, and this is one of the highest going track है। एआई के आई वुड से एआई इम्पैक्ट की बात करें तो एआई का ऑर्केस्ट्रेटर आई वुड से इन मोस्ट ऑफ द डोमेन्स when it comes to business analytics, you can leverage AI for your career. So think about it. AI will act as orchestrator. आपको अवॉइड करना है अगर आप कोडिंग स्टैट्स और डेटा एनवायरनमेंट हेवी बैकग्राउंड से डरते हो, डेफिनेटली डोंट गेट इनटू बीए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सैलरीज बिकॉज रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आई एम ए बी सी एल के आई 2024-25 के प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखा जाए तो एवरेज पैकेजेस आपको मिलेंगे, पीक नहीं। एनालिटिक्स में मोस्ट नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू 8 टू 10 टू 18 एलपीए एवरेज से स्टार्ट है। फिनांस में 8 से 25 लाख का पैकेज मिल रहा है। ऑपरेशन में 7 से 12 लाख का पैकेज मिल रहा है। ग्रोइंग हो रहा है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। मार्केटिंग में 7 से 15 लाख का पैकेज मिल रहा है एंड मोस्ट ऑफ द रोल्स आर प्रीमियम। एचआर में 6 to 9 का पैकेज, लेकिन आई एम टैक्स से आपका 12 से 18 लाख का पैकेज मिलेगा। लेकिन वॉट एवर थिंग्स विच आई टोल्ड यू, दिस इज अकॉर्डिंग टू टायर 3 इंस्टीट्यूट। टायर 1 में most people are getting into consulting and operations, some people are choosing CFA MBA background and they are getting into finance, तो वहां आपका पैकेज 22 से 28 लाख का हो सकता है। सो गाइस, पीक कभी भी मत सोचो, मीडियम सैलरी आपको टारगेट करनी है एंड दिस इज वेयर you will get leverage during the business. So let me give you a decision framework which will be very handy for you. First one, self audit करना सीखो। जो सब्जेक्ट आपने अंडरग्राउंड में सीखे हैं, you need to understand whether these subjects are quite likable to you. अपनी स्किल्स देखो, अगर कौन स्ट्रांग है, फिनांस में जाओ, क्रिएटिव हो, मार्केटिंग में जाओ, लोगों से कनेक्ट करना जानते हो तो एचआर में। स्टेप 2, करियर का विजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 35 इयर्स आपके करियर के देख ले हो, नाउ इफ यू आर इन्विजनिंग इट, सो आप थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो। आप कौन से स्पेशलाइजेशन में एमबीए करना चाहते हो, क्या लाइफ में वांटेड टू गेट इनटू सीए पोजीशन, ये सब देखना पड़ेगा। कि people think that IB or consulting or management consulting cool है, everyone is getting into it, that's why I want to do it. Well and good, but रियलिटी थोड़ी डिफरेंट। अगर अपना टारगेट आईएम या एनआरएफ की टॉप प्लेसमेंट कॉलेजेस देखना है तो उनको उस डोमेन के अंदर, उस कॉलेज के अंदर कितने लोगों को जॉब मिली है वो सर्च करो। जॉब विच अवेलेबल इनटू द इंस्टीट्यूट एज वेल एज एमबीए कॉलेजेस सर्च करो कि उनकी मार्केट में डिमांड। थर्ड थिंग इज इंस्टीट्यूट फिट आपको देखना है, विच इज आईएमए। अगर बात करें तो फिनेंस एंड कंसल्टिंग हेवी है, IIM लखनऊ मार्केटिंग हेवी है, FMS अगेन मार्केटिंग है, IMC इज फिनांस हेवी। तो आपको कॉलेज के अनुसार डोमेन चूज करना है। अगेन एवरी ईयर थिंग्स चेंज, अपील होता है, बट अगेन मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम फ्रेमवर्क इन योर जर्नी। पीयर प्रेशर को फॉलो बिल्कुल नहीं कर। सो फाइनली वी डिस्कस अबाउट व्हाट डज योर बैकग्राउंड से टू द। अपना अंडरग्राउंड बैकग्राउंड एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल बैकग्राउंड है तो बेस्ट फिट आपके लिए फिनांस बिजनेस एनालिटिक्स रहेगा। ऑपरेशन एससीएम प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी आप चूज कर सकते हो। आपको प्योर एचआर अवॉइड करना है जब तक यू आर नॉट गोना गेट दैट पीपल मैनेजमेंट। कॉमर्स सीएस सीएफए की बात करें तो बेस्ट फीस रहेगा फिनांस। आप नेचुरली फिट हो उसके लिए, आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, स्ट्रैटेजी में जा सकते हो, आईबी में जा सकते हो। आपको अवॉइड करना है ऑपरेशंस जब तक आपका कोई ऑपरेशन में एक्सपोजर ना हो। अगर आर्ट्स सोशल साइंस की बात कर रहे हो तो एचआर ओबी मैनेजमेंट मार्केटिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वुड बी द बेस्ट सूट फॉर यू। सीएसआर सस्टेनेबिलिटी में भी अभी मार्केट में बहुत डिमांड चल रही है। देन आप इस बैकग्राउंड से आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली अवॉइड फिनांस विच इज वेरी क्वांट हेवी। एनालिटिक्स यू कैन डेफिनेटली अवॉइड, अगेन डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेस। अगर आपको इन बैकग्राउंड कॉलेजेस में जाना है तो आपको सबसे पहले अपना बैकग्राउंड चूज करना पड़ेगा। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए लाइफ में कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या इन्विजन करना है। Now let me tell you some mistake that students are doing during this scenarios. First one is hard mentality. बिल्कुल hard mentality छोड़नी है। मेरे सब बैचमेट्स कंसल्टिंग या फिनांस में जा रहे हैं। फिनांस में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है,
कंपटीशन भी ज्यादा है, इसके लिए आई कैन गेट इनटू फिनांस। नो, अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है फिनांस, डोंट गेट इनटू इट, गेट इनटू डिफरेंट डोमेन। सेकंड थिंग इज, आपको पूछना है खुद को कि am I following the crowd or am I following my own skill set? अभी बात करते हैं सैलरी। फाइनेंस में पीपल आर गेटिंग 40 LPA, that's why I am getting into finance. Finance में most of the people are getting into investment banking. I feel that that will be a perfect fit for me. Guys, एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, बट मेरे हिसाब से आप सैलरी मत देखो, आप इंक्लिनेशन देखो, आप हेडलाइन मत देखो, आप पैकेज देखो, दैट इज अ मीडियम पैकेज, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चूज योर स्पेशलाइजेशन। इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ इग्नोर मत करना, क्योंकि लेट्स से हम डिस्कस अबाउट सम बी स्कूल, जैसे आईएम की हो गया, कोझिकोड इज क्वाइट गुड फॉर टेक कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग। आईएम कंसल्टिंग के लिए so, आपको ये जानना है कि अगर किसी ने बोल दिया है तो आई कैन गेट इनटू दैट इंस्टीट्यूट, कभी भी नहीं करना है। खुद का रिसर्च करो, टॉक टू द अलम्स, टॉक टू द पीपल, टॉक टू द कॉर्पोरेट्स हु हैव बीन देयर, कनेक्ट देम ऑन लिंक्डइन, आस्क देम रिगार्डिंग सिनेरियोस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आईएम प्लेसमेंट्स एक्चुअली शो। अगर 2024-25 का आईएम प्लेसमेंट्स का डेटा अपन ने ले लिया है, तो इफ यू लुक एट द बार चार्ट इटसेल्फ, कंसल्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर across IIMs. Strategy plus Big Four consulting आती है. Second one is people are getting into finance and BFSI. Almost 30% of the folks are getting into their analytics में उतना ही शेयर है. 15% people are getting into technology, tech consulting बोल सकते हो, जहाँ प्रोडक्ट रोल्स भी आते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग से जो लोग आ रहे हैं, फॉर दिस पीपल इट वुड बी बेस्ट चॉइस फॉर यू। एनालिटिक्स एंड प्रोडक्ट में करियर करना है तो फिनांस कैन डेफिनेटली टेक अ शॉट ऑन इस, बट मेरे हिसाब गो विद द मार्केट, गो विद द कॉलेज, गो विद योर इंक्लिनेशन, उसके अनुसार डिसीजन मत ले लो। नाउ लेट मी टेल यू सम फ्यूचर प्रूफ पिक्स फॉर 2025 टू 30। अगर इस ड्यूरेशन के अंदर, ईयर्स के अंदर आप एमबीए करने वाले हो, तो थोड़ा एआई का जमाना आ चुका है, सो बिजनेस एनालिटिक्स वुड बी हैविंग अ हाईएस्ट ग्रोथ। गार्डनर कहता है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंटरप्राइज डिसीजंस डेटा ड्रिवन होंगे। एनालिटिक्स एमबीए बोर्ड रूम में विन करेगा, डेफिनेटली टेक अ शॉट ऑन दिस। फिनटेक और फिनेंस की बात करें तो दिस इज अ हाई ग्रोथ एरिया। डिजिटल पेमेंट्स हो गया, वेलटेक हो गया, रेगुलेटरी फिनेंस हो गया, फिनेंस प्लस टेक इंडिया का एक नया गोल्ड ट्रैक है, टेक अ शॉट ऑन दिस। एससीएम एंड लॉजिस्टिक्स, दिस डोमेन हैज अ आई वुड से करियर ग्रोथ एंड हाई ग्रोथ डोमेन है। इंडिया का लॉजिस्टिक में मार्केट जो है दैट इज ऑलमोस्ट 22 लाख करोड़। पोस्ट कोविड सप्लाई चेन पे मोस्ट नंबर ऑफ कंपनीज एंड कंट्रीज आर रिलायंस, सो यू कैन ऑल्सो बेट ऑन दिस। डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ी ग्रोथ अच्छी चल रही है, इंडिया में D2C बूम हो रहा है, so it means that every brand is going to work on according to the different types of data. So traditional marketing पे थोड़ा काम कम चलेगा। So these are the 4 areas where you can make your career. So guys, आपको एक 5 क्वेश्चन डिसीजन चेकलिस्ट दूंगा, आपको समझना पड़ेगा, हॉनेस्टली आपको इसके आंसर बनाना पड़ेगा, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अंडरग्राउंड upper, see there are people from diverse domains are coming to the MBA. तो अंडर ग्रेजुएशन में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, पसंद है आपको सब्जेक्ट, उसका आपको नेचुरल इंक्लिनेशन जानना है, उसके अनुसार एमबीए का स्पेशलाइजेशन चूज करना है। सेकंड थिंग इज what job title do you want at the age of 34? Some wanted to get into CFA, some wanted to get into CXO, CWO, C-suite लीडर बनना चाहते, वो सोचना है। थर्ड थिंग, what does your target B school best in? आप जो बी स्कूल में जा रहे हो उसमें सबसे बेस्ट क्या है। फोर्थ थिंग इज you need to understand the growth, is the sector is growing or shrinking, and the subject that you are going to take, the courses, can you survive for that courses, because most of the B schools subjects are brutal, so you need to थिंक अबाउट। लास्टली एक बॉटम लाइन देना चाहता हूँ, कोई भी स्पेशलाइजेशन या यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं होती, बेस्ट वही होती है जो आपके लिए। तो खुद का ऑडिट करो, करियर की गोल देखो, मार्केट की रियलिटी देखनी है, इंस्टीट्यूशन फिट देखना है, एंड हार्ड मेंटेलिटी बिल्कुल। ऑलवेज चूज द स्पेशलाइजेशन विच आर फ्यूचर हेवी, फ्यूचर प्रूफ। 5 लाइन की चेकलिस्ट दी है, उसके जवाब लिखो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट चूज योर स्पेशलाइजेशन। इफ यू दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू आउट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। कमेंट में मुझे बताओ आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन पसंद है और आप किस स्पेशलाइजेशन में एमबीए करना चाहते हो। मैं रोजाना कैट और एमबीए स्ट्रेटेजीज के बारे में कंटेंट लिखता हूँ। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज हिट द बेल बटन। लेट्स join the WhatsApp group which is present there. All the best to you guys.